So in this question, we want to find the reading in voltmeter. Okay, so voltmeter measure potential difference. Okay, this voltmeter measure potential difference across the 12 ohm resistor. इस 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो ये वोल्टमीटर क्या करेगा, मेजर कर ले. सो फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर. ओके, so what is the value of I is 0.24. Okay, and what is R is a 12 ohm resistor. So please multiply. Okay, then this is the 2.88 volt. Reading in voltmeter is what? 2.88 meter is 2.88 volt. Okay, please write this. So reading in ammeter is what? 0.24 ampere, and reading in voltmeter is 2.88 volt. Okay, this is the answer of our question. Please write this value. Okay, the next question is judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel. Okay, we have two question. Part first, A, 1 ohm and 10 to the power 6 ohm. Okay, and B, 1 ohm, 10 to the power 3 ohm and 10 to the power 6 ohm. Okay, so we can discuss one by one. First, okay, so what is the formula for equivalent resistance when connected in parallel? So 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Okay, so if we take the first part, so 1 by R equivalent equal to what? 1 by R1, and what is the value of R1? R1 is 1 ohm. Okay, plus 1 by R2. So what is the value of R2? 10 to the power 6 ohm. Okay, now take the LCM. So 10 to the power 6 is the LCM, and this 10 to the power 6 plus 1. Okay, now what is the value of R equivalent? R equivalent is 10 to the power 6 upon 10 to the power 6 plus 1. Okay, अब आप देखिए इस वैल्यू में 10 टू द पावर 6 में अगर आप एक ऐड करेंगे तो ये वैल्यू नियरली इसके बराबर होगी. मीन्स 1 बाय 1 ये क्या हो जाएगा, 10 टू पावर 6 प्लस 10 टू पावर 6. दिस विल बिकम 1 ओम अप्रोक्सीमेटली. क्योंकि आप खुद सोचिए 10 टू पावर 6 मीन्स व्हाट, 1 लाख. ओके, एंड इफ यू डिवाइड 1 लाख 1, अगर आप 1 लाख को 1 लाख 1 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल ही आएगा. तो इसका आर इक्वल कितना हो जाएगा, 1 ओम. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ओके, सो पार्ट बी, 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Okay, so 1 by R equivalent equal to what? 1 by R1. R1 means 1 ohm. R2 is what? 10 to the power 3. Okay, plus R3 1 by 10 to the power 6 ohm. Okay, now take the LCM. LCM is what? 10 to the power 6 or 10,000. Okay, now this is the LCM, and 10 to the power 6 plus 10 to the power 3 plus 10 to the power 1. Okay, if you solve this value then it will this, and if you solve this value and this is the 10 to the power 6. Okay, now we want to find 1 by R equivalent. This value is 1 by R equivalent. So what R equivalent is what? R equivalent equal to, आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या होगा, 1 लाख 10,000, 10 लाख ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू 10 लाख 1,001 नीचे आ जाएगी. अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.99 ओम या अप्रोक्सीमेटली 1 ओम्स की वैल्यू आ जाएगी. ओके, तो दोनों केस में आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया. ठीक है, तो कितना आया, 1 ओम. ओके,
इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 1 ओम आया था और इसमें भी अप्रोक्सीमेटली कितना आया है 1 ओम. ओके, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. प्लीज राइट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? Okay, क्वेश्चन क्या है? जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, मीन्स व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस? फैन, बल्ब, ओके, फैन, बल्ब, टीवी, वॉट एवर द डिवाइसेस, उन्हें पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट किया जाता है बजाय सीरीज के? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर दैट जितने भी अपने घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, चाहे वो फ्रिज हो, कूलर हो, फैन हो, बल्ब हो, इन सभी को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट नहीं किया जाता. ओके, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन डोमेस्टिक. ओके, घरों में जितने भी अप्लायंसेस है उन सभी को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है. ठीक है, अगर किसी ने बोल दिया कि सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वो रॉन्ग है. यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ओके, and answer is what? In parallel there is no division of voltage among the appliances. आपको एक बात ध्यान रखना है, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा क्या होता है? सेम होता है. ओके, सो इन पैरेलल देयर इज नो डिवीजन ऑफ वोल्टेज अमंग द अप्लायंसेस. सारे के सारे अप्लायंसेस को वोल्टेज एक जैसा मिलेगा. ठीक, जब वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज का डिवीजन वहाँ पर नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच अप्लायंस इज इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज. ओके, और जितना भी वोल्टेज हम सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो हर एक अप्लायंस पर क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, सेम रहेगा. ओके, and total effective resistance of circuit can be reduced by connecting them in parallel. okay, and उनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि पैरेलल में हम जब भी रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है रेजिस्टेंस की. सीरीज में क्या होता है? सीरीज में सबको सम अप करते हैं हम, आर इक्वल टू वॉट? R1 प्लस R2 प्लस R3. ओके, सबको प्लस कर रहे हैं, लेकिन इस सीरीज में क्या होता है? पैरेलल में क्या होता है? 1/R इक्वल अपन निकालते हैं. ठीक है, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है पैरेलल कनेक्शन में. इसीलिए ये इनके एडवांटेजेस हैं. इसीलिए हमेशा जितने भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस है सभी को किस में कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल में, न कि सीरीज में. ओके, प्लीज राइट डाउन.